خدا کے کلام کی آواز، امید کی روشنی، عبادت کی خوشبو اور زندگی بدل دینے والا پیغام ایلوہم گوسپل گلشن مریم ٹی وی پیش کرتا ہے۔ امید، عبادت اور خدا کا کلام۔ EGG۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے دنوں سے آپ یہ عبادات اٹینڈ کر رہے ہیں؟ جی آج کتنا کون رہا ہے؟ 6 دن۔ 5 دن گزر چکے ہیں کہ آپ نے ڈیفرنٹ خادمین سے خدا کی آواز کو سنا، خدا کے کلام کو سنا۔ تو پاسٹر صاحب سے میں پوچھ رہا تھا، میں نے کہا کہ کتنا وقت ہے پیغام کا؟ پاسٹر صاحب نے کہا کہ 30 منٹ ٹائم ہے۔ تو زیادہ وقت ہم نہیں گزاریں گے، میں سمجھوں گا کہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں سیکھیں۔ جب میرے پاس یہ اشتہار پہنچا، میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ اچھا ٹاپک ہے، کیونکہ محبت جو ہے دنیا کے اندر کئی ایک طرح کی محبت ہے۔ تو ہم ایک دفعہ دوبارہ سے اس حوالہ کو پڑھتے ہیں، مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 4 ہے۔ مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 2 باب، اس کی 4 ہے۔ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اور تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکیلیوں کی تعلیم، نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کے کلام کی خاص برکت۔ میری دلوں بڑا ہی خوبصورت پیغام جو خدا آج مجھ سے اور آپ سے اس محبت کے تعلق سے بات کرنے والا ہے۔ خدا قدیم سے انسان سے محبت کرتا آیا، اور خدا نے اس محبت کو مناسب سمجھا تو خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنا لیا، اس لیے کہ خدا کے یہ پلان کے اندر تھا کہ خدا نے انسان سے محبت کرنی تھی، اور اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا پیدائش کی کتاب کے اندر۔ اور جب شبیہ پر بنایا تو خدا نے جب پہلا انسان بنایا دنیا کے اندر، اور وہ انسان میں اور آپ نہیں تھے، وہ انسان خدا نے اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر، کیونکہ کلام خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا روح ہے، اور خدا نے جب پہلے انسان کو بنایا تو روح بنایا، اس لیے کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنائے، اور خدا کی صورت، خدا کی شبیہ وہ روح تھی، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ خدا روح کی صورت میں پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ اس لیے میں نے
खुदा ने ये मुनासिब समझा कि मैंने इंसान से मोहब्बत करनी है, तो फिर खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बना लिया और उसके बाद बदली सूरत के अंदर लेकर आया। आज जब बदली सूरत के अंदर लेकर आया और खुदा ने उसी इंसान को अदन के अंदर रख दिया ताकि वो जिंदगी के दरख्त में से ले, हयात के दरख्त में से ले, ताकि वो हमेशा खुदा के साथ जुड़ा रहे, खुदा की मोहब्बत में, खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की कुर्बत में, खुदा की पनाह के अंदर जिंदगी बसर करे। और अदन के अंदर जब खुदा ने इंसान को बनाया, पहले शबीह पर बनाया, उसके बाद बदली सूरत के अंदर आया और बदली सूरत के अंदर खुदा उसे इसलिए लेकर आया कि खुदा ने उससे मोहब्बत करनी थी। और फिर इंसान जब वजूद में आया और बहुत सारी चीजें खुदा ने उसी मोहब्बत के अंदर वजूद में लाया और बहुत सारी चीजें वजूद में ले आया, ताकि खुदा की ये मोहब्बत थी कि खुदा ने इंसान को इस दुनिया में रख दिया और उस दुनिया में लेके आने का मकसद क्या था, खुदा का पर्पस क्या था कि वो इंसान खुदा से मोहब्बत करे और खुदा उस इंसान से मोहब्बत करे। इसलिए खुदा ने पैदाइश से इंसान को जन्म दिया और वो एक इंसान है जिसे खुदा ने तख्लीक किया है, तख्लीक किया और उसके बाद बदन के अंदर रख दिया, मिट्टी का बना के उसके अंदर वही जिंदगी का दम फूंक दिया जो इंसान पहले बनाया था और वो जिंदी जान हो। फिर खुदा की मोहब्बत बढ़ती गई, इसलिए कि खुदा ने जब उससे बनाया और फिर पहला सीजन जो है वो इंसान का अदन के अंदर हुआ। पहला सीजन दुनिया के अंदर पहला ऑपरेशन आदम का हुआ, क्योंकि खुदा आदम से मोहब्बत करता था, खुदा आदम से प्यार करता था, खुदा आदम से गुफ्तगू करता था, खुदा आदम से बातचीत करता था। मेरे दिलों, ये आज नहीं कि खुदा मुझसे और आपसे बात करता है, ये बात तो पहले से खुदा करता है, पहले से खुदा मोहब्बत करता था, पहले से उसे रफाकत रखता था और इसलिए आज भी इंसान से खुदा रफाकत रखना चाहता है। खुदा की मोहब्बत कम नहीं होती, खुदा की वही मोहब्बत है जो अदन के अंदर थी और खुदा की आज भी वही मोहब्बत है जो अदन के अंदर थी। इसलिए कि पहली सी मोहब्बत मुकद्दस यूहन्ना अर्ज कहता है, खुदा ने इससे कहा कि इस कलीसिया को ये बता दे कि तू पहली सी मोहब्बत से क्यों दूर चली, पहली सी मोहब्बत को क्यों छोड़ दिया, कि मैंने तो पहली मोहब्बत ही तेरे साथ की थी, पहली मोहब्बत खुदा की आदम के साथ थी। इसलिए खुदा ने पहला सीजन किया और उसके साथी को उसके अंदर से निकाला, क्योंकि याद रखना खुदा ने जब आदम को बनाया तो वो अकेला नर नहीं था, अकॉर्डिंग टू बाइबल वो नरो नर ही था, दोनों चीजें उसके अंदर थी। इसलिए खुदा ने पहला सीजन किया तो उसके अंदर से नारी को निकाल दिया, क्योंकि खुदा की ये मोहब्बत थी। और आप गिनती करके देखना, एक साइड पर आपकी एक पसली कम है और वो भी दिल वाली साइड पर। कौन सी? दिल वाली साइड पर आपकी एक पसली कम है। क्यों? इसलिए खुदा ने दिल के करीब से पसली क्यों ली, दिल के करीब से खुदा ने क्यों हवा को निकाला, ताकि इंसान आदम ये जान जाए कि जो साथी है, जितनी मोहब्बत खुदा आदम से करता है उतनी ही मोहब्बत उसके साथी से करता है। और दिल के करीब से क्यों पसली ली गई, क्यों यहां से निकाला गया? इसलिए कि नाम
عورت کو سر پہ بٹھایا جائے اور نہ ہی اس کو پاؤں میں بٹھایا جائے، بلکہ اس کو دل کے قریب رکھا جائے۔ اکارڈنگ ٹو بائبل کلام میں لکھا ہے تو عورت کو نازک ضرب جان کر اس کی کیا کر، عزت کر۔ اور جوانوں کے لیے یہ بات ہے کہ تو بہن جان کر اس کی عزت کر، کیونکہ خدا محبت آدم سے نہیں بلکہ اس کی بیوی سے بھی اتنی کرتا ہے۔ اور آج اگر مرد اور عورت میاں بیوی دونوں روحانی ہیں، دونوں راست باز ہیں، تو بائبل کہتی ہے راست باز کی اولاد بھی راست باز ہے۔ جتنی محبت خدا میاں بیوی سے کرتا ہے اتنی محبت اس کی اولاد سے بھی کرتا ہے۔ اس لیے برکت نسل در نسل چلتی ہے۔ تو میرے دنوں خدا نے آدم سے لے کر انسان سے، آدم سے، ہوا سے محبت کرنا شروع کی اور پھر ختم نہیں کی، ختم نہیں کی۔ یاد رکھنا آدم ہوا سے محبت کرتا تھا اور اس نے ہوا کو بچا لیا۔ ہوا نے گناہ کیا لیکن آدم اس کے اندر شریک ہوا، اس لیے پہلے شریک نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اسے وہ سانپ جو چمپینزی ہے، جو 4 ٹانگوں والا چھپایا ہے، عدن کے اندر جو پہلا سانپ ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے، آدم اور ہوا سے باتیں کرتا ہے، جب اس نے کلام بڑھا چڑھا کر اس کے ساتھ کیا، وہ سانپ نہیں کلام کر سکتا تھا، سانپ کلام نہیں کر سکتا تھا، بولتا تو تھا، بات چیت کرتا تھا، پہلے بھی اس کی رفاقت تھی، وہ چلاک تھا، وہ ان کے ساتھ ملتا جلتا تھا، لیکن لوسیفر نے کمال کیا۔ لوسیفر جب زمین پر آیا اس نے آتے ہی سانپ کے اندر سما گیا، کیونکہ لوسیفر مقرب فرشتہ تھا اور فرشتے کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا، فرشتے کے ہڈی اور گوشت، اس لیے کہ جب خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو بنائیں، وہاں فرشتگان موجود تھے، فرشتگان بھی روح کی صورت میں، خدا بھی روح کی صورت میں، اس لیے انسان کو اسی روح کی صورت میں بنا لیا۔ تو میرے دلوں جب وہ گناہ کے اندر ہوا نے وہ پھل کھا لیا اور آدم اس کے ساتھ شریک نہ ہوتا، لیکن آدم ہوا سے محبت کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ میرا ساتھی ہے، اگر میں آج اس کی بات نہ مانی، میں نے اگر اس کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، یہ بچ نہیں سکتی۔ اس لیے شوہر بیوی کو بچا سکتا ہے اور بیوی شوہر کو بچا سکتی ہے۔ اگر خدا کی محبت ایک کے اندر بھی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ کمپرومائز نہیں کریں گے تو کبھی نہیں بچا سکتے۔ اس لیے میں خدا کی محبت تب بھی نظر آتی ہے اگر ہم ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کو گناہ سے نکالتے ہیں، اگر ایک دوسرے کو دنیا داری سے نکالتے ہیں، دنیا کی خواہشات سے نکالتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے نکالتے ہیں، ٹیڈیشن سے نکالتے ہیں، طرح طرح کے خیالات سے نکالتے ہیں، طرح طرح کی سوچوں سے نکالتے ہیں، تو پھر خدا کی محبت نظر آتی ہے۔ اگر اسی کہہ دیا چلو چھوڑ مرم نہیں ہو جائے تو کرو جی میں مرضی کریں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر بھی خدا کی محبت نہیں، آپ خدا سے محبت نہیں کرتے۔ آج جب خدا سے محبت کرتا ہے اس کے اندر ڈر اور خوف ہوتا ہے، کیونکہ کلام ہمارے اندر ڈر اور خوف کو رکھتا ہے، اور خدا جب آپ کی زندگی کے اندر ہوگا، خدا کی محبت آپ کی زندگی کے اندر ہوگی، تو یاد رکھیں پھر آپ کے اندر ڈر اور خوف بھی ہوگا، آپ کے اندر سے پھر وہ چشمہ جاری ہوگا جو زندگیوں کو سراب کرنے والا ہو، جو زندگیوں کو تبدیل کرنے والا ہو، جو سوچوں کو بدل دینے والا ہو،
जीत सकते हैं जो अपने इसके साथ है। जोरदार तालियां खुदा के दिलाए के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। मुकाशिफा की किताब में लिखा है, मैं आमीन और सच्चा और बरहक खुदा हूं। आमीन भी खुदा है। तो मेरे दिलों, इसलिए आदम ने कंप्रोमाइज किया मोहब्बत के साथ और उसे बचा लिया। वो वहां से निकल आए, जब निकले तो वो मोहब्बत में रहे और आकर उनके अंदर से भी वो चश्मा जारी हुआ। वो जब चश्मा जारी हुआ, औलाद हुई, बढ़ते चले गए, कबीलों को जन्म दिया, आगे बढ़ती गई नस्ल और चलते रहे। और फिर गुनाह इंसान की जिंदगी के अंदर था, ऐसी गुनाह के अंदर लोग जिंदगी बसर करते आए और दीगर कुर्बानियां गुजरा दी गई, लेकिन ये गुनाह खत्म नहीं हुआ। खुदा की मोहब्बत तो थी, खुदा मोहब्बत तो करता था। खुदा ने मोहब्बत की तो बनी इस्राएल को मिस्र से छुड़ा दिया। खुदा ने इंसान से मोहब्बत की तो उन्हें 40 साल मन खिलाता रहा, कपड़े हर चीज मुहैया करता रहा। ये मोहब्बत थी खुदा की। और दूसरी बात, उन्हें लीडर शामिल चुका था, क्योंकि जब भी बड़े इसराइली, जब भी उन्होंने कोई अनहोना काम किया, खुदा को गुस्सा आया, खुदा ने उन्हें मारने की कोशिश की तो मोसेस आगे खड़ा हो गया, क्योंकि मोसेस खुदा से मोहब्बत करता था, खुदा से प्यार करता था। और याद रखना, मुकद्दस मूसा की मोहब्बत ऐसे नजर आती है कि जब भी उसने खुदा से कुछ कहा है, खुदा ने उसकी बात को सुन लिया है, खुदा ने उसकी दुआ को भी सुन लिया। क्योंकि एक जगह पर लोगों ने ऐसे होना काम किया कि खुदा ने कुछ लोगों को मार दिया, लेकिन मुकद्दस मूसा भी खड़ा हो गया। उसने कहा, खुदा अगर तूने मारना है तो फिर मेरा नाम किताब पे याद से खत्म कर दे। उसने कहा, खुदा इन्हें रहने दे, इन्हें छोड़ दे, इन्हें माफ कर दे। और ऐसे लीडर, ऐसे नबी, ऐसे बादशाह बहुत कम दुनिया के अंदर गुजरे हैं कि जो खुदा की मोहब्बत में बंधे रहे, खुदा की मोहब्बत में बंधे हुए हैं। अगर मुकद्दस मूसा खुदा के साथ खुदा की मोहब्बत में बंधा हुआ था तो खुदा उसकी आवाज भी सुनता था। इसलिए बहुत सारी कुर्बानियां लोग गुजराते हैं, नजर की कुर्बानी, खुदा की कुर्बानी, दीगर कुर्बानियां गुजराने के बावजूद लोग मर जाते थे और वो पताल के अंदर चले जाते थे, हथाकड़ा के अंदर चले जाते थे और पताल के अंदर चले जाते थे। इसलिए हमें नजर आता है एक जगह पर जादूगरनी मुकद्दस एलिया और मुकद्दस शमूएल की रूह को वो मिला देती है पताल में से, क्योंकि इख्तियार अब्लीस के पास था, हथाकड़ा। लेकिन यीशु मसीह ने पहले भी मोहब्बत दिखाई, पहले भी इंसान के साथ मोहब्बत करता था और आज भी करता है। उसने बड़ी मोहब्बत की, उसने अपना दुनिया में वही खुदा जो रूह की सूरत में है, खुदा यीशु मसीह जो पहले से ये बनाने के अंदर था, ये सब कुछ था, आज वो दुनिया में आ गया, बदल लेकर आ गया। यीशु मसीह ने देखा कि दुनिया के अंदर बहुत सारी कुर्बानियां गुजरानी जाती हैं, लेकिन रहाई नहीं, गुनाह से छुटकारा नहीं। इसलिए फिर यीशु मसीह जब बदल लेकर आया और यहां तक इंजील में लिखा है, पहला बाप पहली आयत के अंदर इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और वही खुदा जो कलाम की सूरत
सूरत के अंदर आ गया। और जब बंदनी सूरत के अंदर आया तो कलाम में लिखा है यीशु मसीह के बारे में कहा गया हर एक घुटना उसी के आगे झुकेगा, यानी मसीह खुदावंद के आगे। मैंने दिनों खुदावंद यीशु मसीह जब मौजूद में आए और उनके आने का मकसद क्या था, इसलिए वो मौजूद में आए कि वो इंसान से मोहब्बत करता था और वो इंसान से मोहब्बत करता था और उसने देखा कि इंसान बड़ी कुर्बानी गुजारता है, बड़ी मुश्किल के अंदर है। क्या बनी इस्राएल रोजे रखते थे? बनी इस्राएल भी रोजे रखते थे। कलाम कहते हैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे। तो किफरीज क्या करते थे? हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे और बाकी काम भी उसी तरह करते थे और सौंफ और सीने पर भी दाई की देते थे। आज कोई पादरी दाई की तो कलाम सुना दे तो कहते हैं तो लालच में आ गए हैं, कहते ये लालच में आ गए। ऐसा नहीं है। अगर बनी इस्राएल का ये कानून था, बाइबल के अंदर ये कानून है, उस दौर के अंदर भी लोग दाई की देते थे और फजर के अंदर भी अपना 10वां हिस्सा माल का और टाइम का दोनों देने, माल का और टाइम। ये नहीं कि चलो पादरी साहब ने कलाम सुनाए मजबूरी है वो की करिए, क्या ये देनी ही पवेगी हैं। बंदा कभी 10,000 तनख्वाह में कितनी बनती है? 1000 बनती, चल कोई गल तो 800 दे दे, इंज नहीं। ऐसा दगा कभी नहीं करना, क्योंकि हनदी और सफीरा दोनों ने सलाह कर ली तो दोनों ही मर गए। दोनों ने सलाह की, दोनों मर गए। अगर मियां बीवी दोनों सलाह करके दगा कर लेंगे तो रूहानी तौर पर दोनों ही मर जाएंगे, फायदा कोई नहीं। 10 रुपये उठते दो ताकि एक्स्ट्रा बरकत लगे। टाइम का कितना 10वां हिस्सा जी जेड़ा रोज का देना हो तुम। हाँ जी, मोहब्बत से भी चीज आती, इतनी की खाली बात। एनीवन कोई भी बता सकते हैं मोहब्बत, आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर टाइम का 10वां हिस्सा कितने हैं? हाँ जी, 24 घंटे का टाइम काट दो, 10वां हिस्सा कितना है? ये तो पैसे नहीं है जो पीछे कर लेंगे, ये तो पूरा ही दसोगे है जी। चलो पैसे तो बता के पीछे कर लेते 2 घंटे 24 मिनट केड़ा केड़ा दुआ करता 2 घंटे 24 मिनट डेली। उन्हें पता लग जाएगा मोहब्बत का पैगाम के पादरी साहब ने रख दिता, पता तो कर लो मोहब्बत करता कौन है जी। हाँ, उनका वो टाइम नहीं मिलता, पादरी साहब की करेगी, काम काज भी तो करना ते जिन्हें तुहानू पैदा किया हुए, जिन्हें तुहानू इस जमीन पर रखा हुए, जिसने आपको इस जमीन पर जिंदा रखा, जिसने आपको ये सांसें दी, जिसने आपको ये नौकरी दी, जिसने आपको ये शोहरत दी, जिसने आपको ये सारी चीजें मुहैया की है, क्या उसके लिए आप 2 घंटे 24 मिनट नहीं निकाल सकते? बाकी तो सारे टाइम तो अपने वास्ते, भावें बच्चे खड़ाओ, भावें नौकरियां करो, भावें जो मर्जी। ऐसी है जी, बच्चे खड़ाने वाली भी गल सच्ची झूठी नहीं। बंदा बाहरों खपिया तपिया आवे, अगों निक्का बच्चा चुप के खलो जाने भी की करा, रोंदा छड़ दे, जाने नहीं छड़ता, उतर थले मैं पानी देवांगे, उन्हें खपिया तपिया खप तप के आया वो लंबे पै जाना उन्हें, ये बेहून तमाशे कर दिए। ये नहीं कि चलो दरवाजे से खड़ी होके सलाम साहब जी और सुनो कैसा दिन गुजरे, आज कैसी दिहाड़ी गुजरी है, वो भी खुश हो जाए कि चलो मेरा साथी पूछा तो है भावे रोटी पक्की है या नहीं पक्की, बात का मसला है। पहले रिसीविंग ठीक होनी चाहिए, रिसीव सही करे बंदा, ताकि बंदा उठे खुश हो। अद्धा थकेवा तो उठे का थकेगा, भावे सुबह तो लग के वजह सारा दिन काम ही करता है ना, मेरा तो कोई नहीं बैठा हुआ ना, कोई ऐसे पैसे देता है है
तो फिर मोहब्बत कई किस्म की, रूहानी मोहब्बत, खुदा से करने वाली मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, और खुदा जो आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है तभी आप जिंदा हैं, तभी आप बीमारियों से आजाद हैं, तभी आप दुखों से आजाद हैं, तभी आप परेशानियों से आजाद हैं, तभी आप दुनिया की ख्वाहिशात से अलग निकले हुए हैं। आप चुने हुए लोग हैं जो इबादत कर रहे हैं। तो जाकर लोगों कई सुते होंगे, इलाका भी सुते होंगे कहीं, है जी, क्योंकि खुदा की मोहब्बत नजर आनी चाहिए। याद रखो, पैसे थोड़े कमाओ ये ज्यादा, बाइबल के लिए कि मोहब्बत खुदा से यही है कि आप सिंसियर हो। अगर आप 10,000 की जॉब करते हो कोई मसला नहीं, 1,000 रुपये आप खुदावंद को दें पहले दिन, तनख्वाह लेकर आए, पास्टर अमजद रहमत को फोन करे, पादरी साहब कितों, हालांकि पादरी साहब मैंने पता 200-400 का पेट्रोल ही फूक के आन के लाड़ी तू है, लेकिन आपकी बरकत के लिए, आपकी बरकत के लिए आप लाए अपने घर में, पैसे इस्तेमाल ना करें, फिर पता चलेगा कि आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना आरफ को खुदा ने ऐसे नहीं लिखवाया, कोई तो वजह थी, कोई तो प्रॉब्लम थी कि खुदा ने कहा इस कलीसिया को लिख दे, इन्हें बता कि तुम पहले इसी मोहब्बत को क्यों छोड़ दिया तूने। कहता है मुझे तुझसे क्या है जी, मुझे तुझसे क्या है शिकायत है कि आप 10वां हिस्सा नहीं देते, मुझे तुझसे शिकायत है आप टाइम का 10वां हिस्सा नहीं देते, मुझे तुझसे शिकायत है आप चर्च नहीं जाते, मुझे तुझसे शिकायत है आप दुआ नहीं करते, मुझे तुझसे शिकायत है या आप ऐसे जिंदगी बसर करते हो। मैं गिलेशिप में नहीं खुदा कर रहा, कोई वजह होगी फिर कर रहा। और याद रखना, मुकद्दस अय्यूब कहते हैं खुदा कितनी बार बोलता है जी, कितनी बार बोलता है, और 2 बार, कितनी बार, कैसे, केड़ी बहन जरा हाथ से दिखा दो, केड़ी बहन है जवाब, बहन के लिए जोरदार तालियां बजाओ, बहन वास्ते तालियां बहुत पता नहीं चलेगा, अरे बेटियां और बहनों, मैंने जो खुदा एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है, लेकिन ऐसे नहीं बोलता। खुदा मोहब्बत करता है तो बोल, मोहब्बत के बगैर खुदा नहीं बोलता, मोहब्बत तो बगैर तो तुझी मोहब्बत से तो हो नहीं कोई बोलता है नहीं। रजाई मुंह दे के तो 2 घंटे पैकेज ला लेना, लेकिन खुदा नाल पैकेज असं नहीं लाते, खुदा नाल पैकेज अज तो बाद केड़ा इकरार करता है किसी 2 घंटे 24 मिनट का खुदा ना पैकेज लावांगे, भावें छोटा छोटा करके ला लो, जरूरी नहीं। मैं ये नहीं कहता अरे कहता पादरी साहब कह गए ने मैनू ना छड़ी हुण, मैं 2 घंटे 24 मिनट पूरे करके हटा, आधा घंटा करके पूरा कर लो, घंटा करके पूरा कर लो, लेकिन 2 घंटे 24 मिनट नहीं बल्कि 30 मिनट करो, 6 मिनट उठे, ताकि बरकत तो एक्स्ट्रा मिले। और फिर पता चलेगा कि खुदा, आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं और खुदा आपसे मोहब्बत करता है। याद रखना, जिस दिन आपने 2 घंटे 24 मिनट खुदा को देने शुरू कर दिए और अपना 10वां हिस्सा खुदा को देना शुरू कर दिया, हदिया देने शुरू कर दिए, आपके घर में कभी कमी नहीं होगी। इसलिए मुनाफी की किताब पढ़कर देखें, कलाम लिखा है इसी से मेरा क्या करो जी, इसी से मेरा क्या करो, कभी किधर से बचाओ, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा काम नहीं हो गया पूरा। टाइम तो पूरा हो गया, चल करेगा। अच्छा, क्या आप 5 मिनट सुना चाहते हैं? यस, ये तरीके के 5 मिनट कहता है ना कि पादरी साहब बस
बेचैन हो गए, अपने लिए स्वर्ग का ले सब बोले हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। मेरी गल सुनो, पादरी भी 2 घंटे 24 मिनट दुआ नहीं करते हैं, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆ ਬਾਤ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ एल्डर डीकन वर्शिप कोई घट दुआ करना और दुआ करना कोई एडा सौखा काम नहीं जेड़ा तुसी लेकिन याद रखना खुदा नाल पैकेज वही आता है जेड़ा खुदा नाल मोहब्बत करता और फिर खुदा उससे बढ़कर उससे मोहब्बत करता है। याद रखना फिर आपको खुदा की मोहब्बत का पता चलेगा, क्योंकि कलाम कहता है मलाकी कहता है खुदा का बंदा मलाकी नबी कहता है इसी से मेरा क्या कर जी इम्तिहान कर, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आज ही लोग कलाम सुन के सुन लोगे ने तो दसवा सकते थे, पहले भी सुन देते, अगर देते होते तो खुदा कभी भी ना लिखवाता। मलाकी नबी को खुदा ने कहा दस ये मैनू ठग दे नहीं, उन्होंने कहा असीं तो ठग गए तेरे सगा दिल से अगर जवाब नहीं दे असीं तो ठग गए खुदा से हमने किस बात पर तुझे ठगा, लेकिन उन्होंने कहा वो तुझे कन्या नहीं ठगा बल्कि की पूरी कौम ने मुझे ठगा है, पूरी कौम ने कह रहा तुझे कन्या नहीं हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुझे सगा दिल हो, इस बात से तुझे कह रहे हो कि तुझे मेरे अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे, उन्होंने कहा उन्होंने सी कदी मानिया तो तुझे क्यों मानना, क्यों मैंने पहले बताई बात बरकत नस्ल में नस्ल लानत नस्ल में नस्ल। अगर आज से आप बरकत को लेना चाहते हैं याद रखना ये लोही गॉस्पेल चर्च जो है बड़ी तरक्की करेगा, बहुत तरक्की करेगा। कभी आजमा कर देखें इम्तिहान है खुदा का, आप कलाम को अपने दिल में रख लें, कलाम को इस दिल की तख्ती पर लिख ले, इस गोश्तिन दिल की ये गोश्तिन दिल मिला क्यों, ताकि पहले पैगाम द्वार पर आता था, पहले पैगाम लोगों पर आता था, लेकिन अब मुकद्दस नबी कहते हैं रसूल कहते हैं मुकद्दस लोग कहते हैं खुदा तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ होना, अगर कलाम इस दिल की तख्ती पर लिखा गया तो फिर हम कभी भी खुदा को ठगेंगे नहीं बल्कि हम कलाम को पूरा करेंगे। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों बेटो और बेटियों याद रखना आज की बात कलाम को पूरा करना, जरूर पूरा करना सीखें। जिस दिन आपने कलाम को पूरा करना शुरू कर दिया तो आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। एक मोहब्बत तो है खुदा को, लेकिन याद रखना बाइबल मुकद्दस में बयान करती है इब्लीस मुकद्दसों के पीछे वो पीछे हो गए, कोई मसला नहीं, अंदर से टपना चाहिए है जी, क्योंकि अंदर जो आएगा तो दुख नहीं होगा मुखालफ, अगर पीछे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि तो आगे नजर यीशु सीधे लगी, तो जब तो आगे नजर यीशु सीधे लगी तो बार बार क्या फिर कुछ भी नहीं कर सकते, वो काम नहीं, क्योंकि इस फजा के अंदर तो इब्लीस का सिस्टम है ना, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि 3 आसमान है लेकिन दूसरे गुआंढी के अंदर 7 आसमान है जी, बाइबल कहती है 3 आसमान, पहला आसमान फजा जहां इब्लीस है, इब्लीस की फौजें हैं। मुकद्दस दानियल कहते हैं जब फरिश्ता पैगाम में जवाब लेकर आ रहा था दुआ का तो आते आते उसे क्यों देर लगी कि फजा की जो फौजें थी, फजा के अंदर जो इब्लीस की फौजें थी ये उसे नीचे नहीं आने दी, लूसीफर की फौज वो जाग बोल रही, इसलिए दूसरे आसमान के ऊपर मुकद्दसीन है, तीसरे आसमान के ऊपर यीशु मसीह है। बाइबल कहती है मुकद्दस स्तिफनस ये स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि मुकद्दस स्तिफनस बड़ी खुदा से मोहब्बत करते थे और खुदा भी उससे मोहब्बत करता था, इसलिए वो संसार होना उसे पसंद किया, लेकिन उसने खुदा की मोहब्बत को रद्द नहीं किया, खुदा की मोहब्बत को छोड़ा नहीं, खुदा ने मोहब्बत
खुदा की, वो संसार तो दुनिया में हुआ है, लेकिन वो जगह या तीसरे आसमान पर चला गया। यीशु मसीह से जा मिला है जी। तो मुकद्दसीन कितने जाते हैं किरी गोद च यीशु मसीह दी गोद च वो यीशु मसीह को जा रहे हैं ना संसार होता संसार में यीशु मसीह को जा रहे हैं वो संसार हो रहा है जमीन पर, लेकिन जा पा रहा है मैंने कहा मैंने यकायक मैं कहाँ गया तीसरे आसमान के ऊपर। क्यों तीसरे आसमान के ऊपर गया? आप बाइबल पढ़े और अलग बाइबल स्टडी कर रहा हूँ। यीशु मसीह की वजह से जहां मैं हूँगा वहां फिर आपने कौन सा रखना चाह है जी। फिर तो जमीन को छोड़ोगे, अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, जब जमीन को छोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट यीशु मसीह के पास जाएंगे। जोर से तालियां खुदा के नाम पे। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। नाम का पवित्र और तालियां इस बात का सबूत है कि आज शाम भी आपके बरकत पाई है। आमीन आमीन। और मैं खुदा के खादम के लिए दिल की अथाह गहराइयों से खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ रेवरेंड एजाज मट्टू साहब के लिए, जो अपनी फैमिली के हमरा हमारे दरमियान आए और कलाम की मुहिम और खूबसूरत बातों को हमारी कलीसिया के लिए और इस पूरे इलाका गुलशन मरियम के लिए शेयर किया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। Support my channel, Elohim Gospel Gulshan-e Mariam TV channel. Subscribe and like.